بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم نے دلیل و برہان کی بنیاد پر چند شخصیات کے مخالطوں کو رد کیا، صرف اس نیت سے کہ اہل سنت کا جو صدیوں سے علمی سرمایہ چلا آ رہا ہے اور صدیوں کے علمی سرمایہ میں جو کچھ لکھا ہے وہی بیان کیا جائے، اور اس سے انحراف قطعاً یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ جو کتابوں میں لکھا ہے حضرت وہی بیان کریں، اس سے آگے پیچھے نہ جائیں۔ اور اللہ کے فضل سے جنہوں نے ابھی تک میرے ان بیانات کو سنا ہے وہ سب گواہ ہیں کہ ہم نے کتابیں ہی دکھائی ہیں اور وہی دکھائی ہیں جن کی دعوت شاہ صاحب نے پڑھنے کے لیے ہمیں دی تھی، اور ہم نے پڑھ کر ان کو سنا دی ہے۔ تو اس میں کسی طرح کے غصے والی، جلال والی اس طرح کی بات نہیں تھی، لیکن ایک دفعہ ذرا آپ سنیں کہ انہوں نے میرا جواب دیا بھی ہے تو کس انداز سے دیا، اور ویڈیو کا ٹائٹل یہ رکھا کہ اشرف جلالی کے بچے کو کرارا علمی جواب سننے کے لیے تو ہم بڑی دیر سے بےتاب تھے، لیکن جواب دیا تو کس انداز سے دیا۔ ان بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو ایک بدبخت کے سیکھے ہوئے ہیں اور ہر بات کو وہ اپنے ذاتی غیظ و غضب کے ساتھ اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ چھوٹے ہو، بچے ہو، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کہوں گا، آپ کے لیے اتنا ہی کہوں گا، موتوا بغیظکم، آپ اپنی ہی جلن میں مر جاؤ گے۔ بات کہیں کی ہو اور آپ اس کو پھیر کے اپنے ذاتی غم و غصے میں لے آتے ہیں، یہ سب آپ ہی کا کیا دھرا ہے۔ تو یہ ان کا انداز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح دبا لوں، غصہ دکھا کر، گالیاں دے کر، ایسے نہیں ہوگا، ہمیں دبانا ہے، ہمیں زیر کرنا ہے تو ایک دفعہ اپنی بیان کی ہوئی کتابیں ہمیں دکھا دیں، اپنی پسندیدہ کتابوں سے اپنا موقف ہمیں دکھا دیں، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اور ورنہ دبانا چاہتے ہیں تو وہ میں نے پہلے ہی کہا ہے، جو غالب کی زبان سے میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں، ہمیں تو پہلے اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ اب تو ویسے ہی آسان ہو گیا سننا، یہ بد دعائیں سننا، یہ اس طرح کی باتیں سننا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ جتنا میرا رد کرتے رہتے ہیں اور جتنا یہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی مت سمجھے کہ ہم دب جائیں گے۔ انکار کی سی لذت اقرار میں کہاں، بڑھتا ہے ذوق غالب ان کی نہیں سے، وہ جتنا ہمیں نہیں کر کے رد کریں گے اتنا ہمارا ذوق بڑھے گا اور ان کی ہر بات کا بھرپور انشاءاللہ جواب دیں گے۔ خیر، یہ ان کی مرضی ہے، وہ بددعائیں دیں، موتوا بغیظکم کہہ کر ہمیں مارنا چاہیں، اللہ کے فضل سے ہمارا چلتا پھرتا وجود ہی ان کی اس دعا کے نتیجے کا ایک بین ثبوت ہے۔ یہاں وہ ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا والی صورت ہے، وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ شاہ صاحب کی جب دعا ہوتی ہے تو اس کا اثر وہی ہوتا ہے جو ساطلب بعد الدار والی صورت میں نکلتا ہے۔ بہرحال اگلی بات جو شاہ صاحب نے کی وہ بات انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ آگ کس نے لگائی، یہ آپ حضرات کی باجی نے لگائی ہے، یقیناً وہ آپ سب کی باجی لگتی ہے، ابھی ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کی بکواس سنیں جس نے یہ آگ لگائی، اس رافضی لونڈے کی بھی بات سنیں جو باجی کر کے اس کو داد دے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کی اس پاک بیٹی کی جو کنیز ہماری باجی ہیں، سیفی علی خان ایڈوکیٹ، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ علامہ صاحب آپ وکیل اہل بیت ہیں، میری مدد کریں۔ میں نے کہا میری تو جان بھی قربان ہے، اور باجی کو اہل سنت کی امہات الکتب سعودی عرب کی چھپی ہوئی اتھینٹک کتب کے ساتھ، سند کی بحث کے ساتھ، اس کے رجال کی بحث کے ساتھ، اس کی متن کی بحث کے ساتھ پورے حوالے اس کو کراچی پہنچا دیے۔
मेरी बाजियां बैठी हुई हैं, माई बहनें बेटियां बाजियां आप बैठे हुए, आपने अभी मैं आपकी बात करवाने लगा हूं, अभी कॉल मैंने ये डायल कर दी है। हमने बाजी को ये पैगाम देना, आपका पैगाम जाना चाहिए, उनकी सुने और अपना सुनाए। और ये इधर लिखी जा रही है, नहीं समझे यार, आपकी गवाही अभी लिखी जा रही है, इधर आप गवाही देंगे, इधर लिखी जाएगी। ये नंबर डायल हो गया, खामोशी इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी हजार हा मर्दो खवातीन आपको सुनना चाह रहे हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी गवाही जो है वो बतूल के इस मुकदमा में कबूल कर ली जाए और हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और अब जरा इस राफसी लोंडे के अपने साथ बैठने वाले, वो सर पर मीनारे पाकिस्तान उठाने वाले के साथ ताल्लुकात को भी देखें। अहले बैत की मोहब्बत ये शियत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ये सुन्नियत भी नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ये देवबंदियत भी नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ये वहाबियत भी नहीं, अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। तो ये है जो आपका चहीता है मीनारे पाकिस्तान उठाने वाला, उसका चहीता है वो यासिर राफजी, और उसकी बाजी है जिसने ये सारी आग लगाई है। इमाम जलाली था इनकी राह में रुकावट, जिसने सारी आग को दबा दिया और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का भरपूर दिफा किया। कौन था आप में से उस वक्त जो नरम बिस्तरों से उठकर धराइल के मैदान में उतर आता? कौन था जिसको रातों को नींद नहीं आती थी कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान के दरवाजे खोल दिए गए? एक इमाम जलाली के सिवा कोई एक बंदा दिखाएं जिसने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का दिफा किया हो। तो ये सारा वो मामला था। आग किसने लगाई सब कुछ आपको पता है, लेकिन अब आप लहू मलकर शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। ये आप सबकी एक नाकाम कोशिश है। एक फर्जी मनगढ़ंत गुस्ताखी की बुनियाद पर हर तरफ हिले बैठे हैं, हर तरफ हलचल मचाई हुई है। जहां गुस्ताखी हुई वहां एक लफ्ज बोलना नहीं गवारा किया। उस वक्त कहां थे ये सारे आस्ताने? और आज इस बात को भी मैं वाज़े करना चाहता हूं कि ये जो एक मुफ्ती कहता है कि इतने सादात की जो दिल आज़ारी हुई, ये जो तड़प रहे हैं, यही बड़ी दलील है कि ये गुस्ताखी है। इनकी तड़प ही अगर दलील है तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी पर कोई एक भी तड़पता नजर नहीं आया था, तो क्या गुस्ताखी हुई नहीं थी? और उससे बढ़कर मैं अगली भी बात कर देना चाहता हूं। आज के माहौल में यूरोप के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के जो सिलसिले हैं, जो उनकी गुस्ताखियों के इरादे हैं, इनमें से कौन है जिसने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की हो? कोई एक दिखाएं जिसने उनके नात के बंद करने के लिए मैदान लगाया हो। ये सारे फर्जी बातें करना जानते हैं। ये अपने ही दायरे में रहकर अपने मफादात के लिए आंसू भी बहा देते हैं, अपने मफादात के लिए चीख चीख कर मैदान में भी आ जाते हैं। अगर इनको गुस्ताखी का इतना ही दुख था तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी गुस्ताखी पर चीखते नजर आते। और वो गुस्ताखी जो यूरोप के अंदर होने जा रही है, जिसके लिए यूरोप अपने पर तोल रहा है, उस पर इनकी चीखें क्यों नहीं निकलती? इनकी नींदें क्यों नहीं उड़ जाती? आज मैं ये बरसरेआम ऐलान कर रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, इनमें से एक बंदा भी कभी यूरोप पर तनकीद करता नजर नहीं आएगा। ये यूरोप के पालतू MI6 के मिशन को पूरा करने वाले कभी भी यूरोप के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे। इनकी एक कॉन्फ्रेंस भी दिखा दें, ये जो हर जगह 40 बंदे बिठाकर
सोशल मीडिया पर गुस्ताखी और कुफर के फतवों का शोर मचाते हैं। कभी 400 बंदे लेकर किसी एक मैदान में उतर आए कि हमें यूरोप की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है, इनका सब कुछ लुट भी जाएगा, तो कभी भी ये यूरोप के खिलाफ आवाज बुलंद करते नहीं निकलेंगे। अगर कोई जुर्रत, ईमानी गैरत मौजूद है तो मीनारे पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में चार्ली हेड्रो उस गुस्ताख को उतनी गालियां निकाल कर दिखाएं जितनी गालियां नारोवाल की कॉन्फ्रेंस में निकाली थी। लेकिन मैं आज ऐलान कर रहा हूं, यह कभी भी नहीं होगा। फरियाज फरंग दिलावेसी फरंग, फरियाज शेरीनी परवेसी फरंग, आलम हम वीरान से चंगेजी फरंग। इकबाल उस वक्त कहता था कि ये यूरोप से फरियादें करने वाले, यूरोप की दिल अवेसी, उनके दिलों को राजी करने वाले, उनकी शेरीनी और परवेजी से मजे उठाने वाले, इतना तो सोच लें, आलम हमा वीराना से चंगेजी या फरंग, ये सारा आलम यूरोप की चंगेजी से बर्बाद होता नजर आ रहा है। उनकी चंगेजी, उनके जुल्म सितम, उनकी गुस्ताखियां, उनके इस्लाम पर हमले, इनको देखकर फिर फैसला करें कि यूरोप की दिलावेसी करनी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है। आज इन सारे मशाइख जो बने बैठे हैं इस्लाम के ठेकेदार, अपनी एक पूरी तहरीक बनाए बैठे हैं, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत पर पहरा देकर दिखाएं, लाएं अपने तमाम मरीदों के मैदान के अंदर, ऐलान करें हमें यूरोप की गुस्ताखी कतअन बर्दाश्त नहीं है, हम ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे अगर यूरोप ने गुस्ताखी करने की जुर्रत की। फिर पता चलेगा ईमानी खैरत होती क्या है। लेकिन ये मर जाएंगे, यूरोप की नेशनैलिटी को कभी खतरे में नहीं लाएंगे। ये सारे यूरोपी हैं, चाहे वो सर पर मीनारे पाकिस्तान उठाने वाला हो, चाहे इरफान शाह हो, चाहे वो सबज जुब्बे कुब्बे पहनकर यूरोप में रहने वाले अचानक पाकिस्तान में वरूद कर कर समझते हैं कि हम सबसे बड़े आशिक हैं, अब मैदान लगा है, अब आशिक बनकर दिखाएं और आए मैदान के अंदर। आज इनकी हालत देखकर मुझे इकबाल का वो कलाम याद आता है। इकबाल के दौर में भी कुछ नाहिंजार अंग्रेज के खिलाफ जिहाद नहीं करने देते थे। इकबाल कहता है, फतवा है शेख का ये जमाना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, कि अब अंग्रेज के खिलाफ तलवार और जिहाद वाली बात नहीं करनी, अंग्रेज के खिलाफ बस कलम से जो लिख सकते हो वो लिख लो, लेकिन कोई गरम बात नहीं करनी। और ये सारा नक्शा ये इंग्लैंड सदा पीराने उजाम के ऊपर पूरा फिट आता है। इनमें से एक एक शेख वही शेख बनता नजर आता है। आगे इकबाल कहता है, लेकिन जनाब शेख को मालूम नहीं है क्या, मस्जिद में अब ये वाज है बेसूदो बेअसर, बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़िराह में डूब गया दोस्ता कमर, कि यूरोप ने अपने आप को पूरा महफूज कर लिया इन जैसे शयूख की ढाल को इस्तेमाल करते हुए। आगे इकबाल कहता है, तालीम इसको चाहिए तर्के जिहाद की, दुनिया को जिसके पंजाए खूनी से हो खतर, हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, ये है हमारे मशैख। इकबाल भी पूछता था, आज हम भी जुर्रत करते हैं पूछने की कि हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से। वो शेख कलीसा नवाज, सर पर मीनारे पाकिस्तान उठाने वाला, वो शेख कलीसा नवाज इरफान शाह, वो शेख कलीसा नवाज सरता पाज सबज जुब्बे कुब्बे पहनने वाला, एक से एक बढ़कर शेख कलीसा नवाज है, शेख यूरोप नवाज है। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंगे शर है तो मगरिब में भी है शर। कैसा नक्शा इकबाल ने पेश कर दिया कि तुम्हें मशरिक में शर नजर आ रहा है, यहां मैदान लगाकर बैठे हो, मगरिब में भी शर है, मगरिब में भी गुस्ताखियां हैं, यूरोप में बड़ी गुस्ताखियां हैं।
उधर भी जरा नजर करो, उनकी गुस्ताखियों पर भी चीख कर दिखाओ, उनकी गुस्ताखियों के लिए भी मैदान लगा कर दिखाओ। हक से गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात? इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। लब्बैक इस्लाम का मुहासरा यूरोप से दरगुजर। इस्लाम के निगहबानों का मुहासरा। कहां थे आज तक? इतने इतने फितने आए इस सरजमीन पर, तुम किसी एक मैदान में भी नजर नहीं आए। इस्लाम के सपूत का मुहासरा करने के लिए यूरोप से सारे नाजिल हो गए। हक से गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात? इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर।